What if I tell you that I can raise your rank in GATE by 1000 with just 15 marks? And this is how I used to attempt aptitude questions in GATE, which guaranteed my 15 marks in GATE for sure. Hi everyone, I hope you're doing good. एक रियल बात करते हैं, ओके? आप लोग दिन के 10, 12, 14 घंटे अपने कोर सब्जेक्ट्स को मास्टर करने में लगाते हो, राइट? Whether it be thermodynamics, data structure, soil mechanics, end-to-end path ready करते हो. But I have one question here. General aptitude के उन 15 marks का क्या plan है? What if I tell you that those 15 marks are the easiest, most predictable marks in the entire GATE paper? What if I tell you that securing them is the secret of boosting your rank by hundreds, even thousands? My name is Ujasvi and I am an alum of IIT Bombay. When I wrote my GATE, I was in the same position as you, but I developed a strategy that helped me score a perfect 15 out of 15 in general aptitude by focusing on it for just a few days. And in this video, I'm going to give you that exact, no fluff, no long lectures, just a battle plan. So grab a notebook and stay with me till the very end, क्योंकि by end of this video you will have a plan to get full marks in aptitude, and I will also share how I used to attempt questions, that too aptitude questions in GATE, which guaranteed my 15 marks in GATE. And last, I will share a thing which will save your 80% of the time. So stay tuned, and now let's start the video. So सबसे पहली बात, एप्टीट्यूड को एक साइड सब्जेक्ट समझना बंद कर दो. ये साइड में नहीं है, ये आपका स्ट्रैटेजिक वेपन है. ये 15 मार्क्स आपके रैंक बूस्टर है. सो व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग, आई सॉ सो मेनी ब्रिलियंट फ्रेंड्स हु न्यू देयर कोर सब्जेक्ट्स इनसाइड आउट, but they neglected aptitude and ended up with ranks just outside the cutoff of top IITs. I decided I won't let that happen. These 15 marks are your safety net and your launch pad. To win this game, you need to know the rules. We have 10 questions, that to 15 marks. 5 questions आते हैं 1 mark each type के, और 5 questions आते हैं 2 marks each type के. So असली game in 2 mark questions में है. ये आपके 15 में से 10 marks बनाते हैं. But here's the most critical piece of information, that is negative marking. For MCQ, if you get wrong, you lose 1/3 of a mark for a 1 mark question and 2/3 of a mark for a 2 mark question. That's brutal, right? But for the numerical answer type, that is NAT and multiple select questions, there is zero negative marking. Let me repeat that, zero negative marking. इसका मतलब साफ है कि एक भी NAT और MCQ क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, कभी नहीं छोड़ना है. इट्स अ फ्री हिट. गेस भी करोगे ना तो भी कुछ आपका नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग ही नहीं है. सो दिस वन थिंग इज नॉट नेगोशिएबल. सो जब हमारे पास टाइम कम होता है ना, तो पूरा सिलेबस करना तो एक बेवकूफ़ी कहलाएगी. सो हम अप्लाई करेंगे पेरेटो प्रिंसिपल, जिसमें हम उन्हीं 20% ऑफ टॉपिक्स पे फोकस करेंगे जो हमें 80% ऑफ द मार्क्स ला कर देंगे. और इसमें आई हैव क्रिएटेड अ लिस्ट फॉर यू, जिससे आपको ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट ना करना पड़े अपना, एंड यू कैन डायरेक्टली हिट द प्रिपरेशन पार्ट. सो विद इन दैट टू आई हैव डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2 एंड प्रायोरिटी 3. प्रायोरिटी 1 आर दोज टॉपिक जो आपको मस्ट डू है, मतलब वो करने ही करने हैं. प्रायोरिटी 2 में है अगर आपका टाइम परमिट करता है तो हम उस टॉपिक्स पे जाएंगे. और प्रायोरिटी 3 है कि अगर आपके पास टाइम भी है और एफर्ट भी आप मारना चाहते हो तो आप प्रायोरिटी 3 वाले टॉपिक्स को कवर कर सकते हो. सो हम जनरल एप्टीट्यूड को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. द वन इज़ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, द सेकेंड इज़ वर्बल एप्टीट्यूड, एंड द थर्ड इज़ एनालिटिकल एंड स्पेशल एप्टीट्यूड. इफ़ वी टॉक अबाउट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसमें प्रायोरिटी 1 में जो टॉपिक्स आते हैं वो है हमारे एलजेब्रा एंड ज्योमेट्री, जिनको कंसिस्टेंटली देखा गया है कि इसमें से क्वेश्चंस आती हैं हमारे. उसके साथ साथ डेटा इंटरप्रिटेशन जैसे बार ग्राफ्स, पाई चार्ट्स एंड टेबल्स के भी रिकरिंग में 2 मार्क्स क्वेश्चंस आई हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में. नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट प्रायोरिटी 2, इसमें हमारे टॉपिक्स जैसे आपको कवर कर सकते हो वो है न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन एंड एस्टिमेशन, विच इंक्लूड्स परसेंटेज, रेशियो, पावर सीरीज एंड लॉगरिथमिक. नाउ कमिंग टू प्रायोरिटी 3, जो आप करोगे इफ़ यू हैव कंप्लीटेड प्रायोरिटी 1 एंड 2 टॉपिक्स, जिसमें है हमारे एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस एंड मेंसुरेशन. नाउ कमिंग टू टाइप 2, जो है हमारा वर्बल एप्टीट्यूड, उसमें प्रायोरिटी 1 के जो टॉपिक्स आपको कवर करना है वो है इंग्लिश ग्रामर, जिसमें टेंस
टेंसेज, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस, वर्ब, नाउन, एग्रीमेंट जैसे टॉपिक्स आते हैं. देन कम सेंटेंस कंप्लीशन वाले, जो बेसिकली रूल बेस्ड होते हैं और प्रिडिक्टेबल होते हैं और ईजी स्कोरिंग भी होते हैं, तो आप उनको करना मत भूलना. देन यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड मोर ऑन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन. नाउ कमिंग टू प्रायोरिटी 2 विद इन वर्बल एप्टीट्यूड, आपके जो टॉपिक्स आते हैं वो है वर्बल एनालॉजीज एंड क्रिटिकल रीजनिंग, जो कि बहुत लॉजिकल डिडक्शन से आप उनको सॉल्व भी कर सकते हो. देन कमिंग टू प्रायोरिटी नंबर 3 वर्बल एप्टीट्यूड में जो हमारे टॉपिक्स हैं वो है सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड ईडियम्स, जो आप रेकरिंग भी आप उसको रिवाइज करोगे ना कि जो जो प्रीवियस ईयर में आ रहे हैं, उससे भी आप क्लैरिटी मिल जाएगी कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं विद इन दिस टॉपिक. नाउ कमिंग टू द थर्ड कैटेगरी विच इज़ आर एनालिटिकल एंड स्पेशल एप्टीट्यूड. इसमें प्रायोरिटी 1 के जो टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, मतलब जो मस्ट डू हैं, वो है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ शेप्स, मतलब जिसमें रोटेशन, मिररिंग, पेपर फोल्डिंग, कटिंग, जिसमें बोलेंगे एक शेप दी हुई होगी और उसको बोलेंगे कि अगर हम इसको मिरर करते हैं तो कौन सी इमेज बनेगी, उस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं. देन आपके फंडामेंटल लॉजिक्स जो आप कवर करने हैं वो है डिडक्शन एंड इंडक्शन वाले क्वेश्चंस. देन नंबर रिलेशंस एंड सीरीज. उसके बाद जो हमारे प्रायोरिटी 2 में आते हैं वो टॉपिक्स हैं डायरेक्शन सेंस के और कोडिंग डिकोडिंग के, जो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं और जिनको आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अगेन करते हो तो उससे भी आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो इसमें इतना टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है आपको, वो ईजिली डिडक्शन बेस्ड होते हैं. बिफोर जंपिंग बैक टू द वीडियो, आई हैव एन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट टू मेक. सो आई वुड बी लाइव रिप्लाइंग टू ऑल द कॉमेंट्स विच यू कॉमेंट विद इन 3 hours once the video is live. So make sure that you utilize this golden opportunity to connect with me directly. And if you have any doubt related to GATE or any other examination, या आपको कोई वैसे भी एक गाइडेंस चाहिए, so please do comment once the video is live and I will make sure that I reply as soon as I see those comments. Also 77% of the viewers have not subscribed to the channel, so do subscribe the channel because it highly motivates me to make more content like this and help you out. And basically it will give you an unfair advantage over others and it will actually help you to ace in your career, so do subscribe the channel. Also YouTube ने एक नया फीचर निकाला है जिसे बोलते हैं हाइप, which will genuinely motivate me and support our small community to grow. So do hype the video. आपके लिए एक छोटा सा काम है, बट फॉर मी इट्स अ ह्यूज सपोर्ट, सो डू हाइप. सो अब हमने टॉपिक्स जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो हमने कवर कर लिए हैं कि विद इन टाइप ऑफ एप्टीट्यूड क्वेश्चंस उसमें हमें कौन कौन से टॉपिक्स पर फोकस करना है, दैट वी हैव कवर्ड. ओके, नाउ द क्वेश्चन कम्स कि हम इनको प्रिपेयर कैसे करेंगे. अब कुछ टाइम के लिए आपको सिर्फ ये सोचना है कि जो हमारे प्रायोरिटी 1 है, क्योंकि अगर हम विद इन 15 days में अगर इसको हम कवर करना चाहते हैं तो आपके सिर्फ प्रायोरिटी 1 जो हमने डिस्कस करें आप उन्हीं पर सिर्फ फोकस करोगे, आपका सिलेबस एप्टीट्यूड में सिर्फ उतना ही होगा. और अब हम इसको करेंगे कैसे प्रिपेयर, उसके लिए आई हैव क्रिएटेड अ 3-step स्ट्रैटेजी जो आप फॉलो करोगे. फर्स्ट में आप प्रीवियस ईयर को अटेम्प्ट करोगे, दैट टू विद अ रिवर्स इंजीनियरिंग. उसका क्या मतलब है, पहले आप प्रीवियस ईयर को सॉल्व करोगे, उसके बाद इफ यू गेट समथिंग रॉन्ग तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना उसमें, यू विल डायरेक्टली जंप टू द कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूला जो उसमें यूज हुआ है और उसमें आप रिवाइज करोगे. थर्ड स्टेप इज यू रिवाइज एंड गो टू अ फॉर्मूला शीट और अ क्विक यूट्यूब वीडियो जिसमें आप एनालाइज कर सको कि आपको उस क्वेश्चन को एक्चुअली में अटेम्प्ट कैसे करना था. इससे आप उन चैप्टर्स पर टाइम वेस्ट नहीं करोगे जो आपको पहले से ही आते हैं. नाउ द सेकंड चीज इज मॉक टेस्ट. आपकी ड्रेस रिहर्सल है, कम से कम 2 से 3 फुल लेंथ मॉक्स दोगे, लेकिन स्ट्रैटेजिकली अपने एक्चुअल गेट एग्जाम के टाइम स्लॉट पर ही बैठोगे. इससे आपकी जो बॉडी क्लॉक है वो सेट हो जाएगी. और प्लीज़ प्रैक्टिस में सिर्फ ऑफिशियल गेट वर्चुअल कैलकुलेटर ही यूज़ करना. वो थोड़ा क्लमजी है बट उसकी आदत डालनी पड़ेगी आपको, ताकि आपके लास्ट टाइम में आपको प्रॉब्लम ना हो उसे यूज़ करने में. सो यूज़ दैट वर्चुअल कैलकुलेटर ओनली. नाउ कमिंग टू द थर्ड स्टेप जो आपको करना है, क्रिएटिंग अ गोल्डन फॉर्मूला शीट. अब आपको एक A4 साइज पे सारे फॉर्मूलाज जो भी आपने अब तक सीखे हैं थ्रू वीडियोस और थ्रू नोटबुक्स और एनी अदर थिंग विच यू आर गोइंग थ्रू, उससे आप अपना एक फॉर्मूला शीट बनाओगे. बेसिकली आपको इन फॉर्मूलाज को अपने फिंगर टिप्स पे रखना है. ओके, आई विल बी शेयरिंग माई ओन हैंड रिटन चीट शीट फॉर यू, और उसके लिए आपको सिर्फ PDF कॉमेंट में करना है एंड आई विल रोल आउट दैट PDF फॉर यू, ताकि आप उसको या फिर रेफरेंस ले सकते हो, अपना एग्जैक्टली अपनी ऐसे ही बना सकते हो, या फिर आप उसको भी यूज़ कर सकते हो फॉर योर रिवीजन purposes. The choice is yours, but I am going to share that PDF with you, so just comment down PDF if you want that. Now as I promised that I am going to share my exact
strategy which I used to use when I used to attempt aptitude questions in actual GATE examination. जैसे एग्जाम स्टार्ट होता है सबसे पहले काम जर्नल एप्टीट्यूड सेक्शन पे जाओ, इसको एंड के लिए मत बचाना। शुरू में दिमाग फ्रेश होता है, सो पहले 15-20 मिनट में हम 15 मार्क्स सिक्योर कर लेते हैं, बिकॉज इससे हमें कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलता था। आई यूज दिस प्रिंसिपल कॉल्ड 3 साइकिल अटैक। पहले 8-10 मिनट में आई जस्ट यूज टू गो थ्रू ऑल द क्वेश्चन फ्रॉम एप्टीट्यूड, और जो एकदम होते हैं ना, जो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, वो हम अटेम्प्ट कर लेती थी। अब साइकिल 2 में जब हम दोबारा से जा रही हूँ, वो उन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करती थी जिनमें थोड़ी कैलकुलेशन होती है या जिनमें थोड़ा सोचना पड़ता है, तो साइकिल 2 में हम वो वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करती थी। अब जो आखिरी के 2-3 मिनट्स बचते हैं, उसमें अगर कोई NAT है या MCQ बचा है जिसमें हम गेस कर सकते हैं, तो हम वो अटेम्प्ट करती थी। एंड प्लीज मेक श्योर जो आपका एप्टीट्यूड सेक्शन है ना, वो आप विद इन 20 मिनट्स ही कंप्लीट कर दो। मतलब 20 मिनट्स के बियॉन्ड आपको इन्वेस्ट नहीं करना है इस सेक्शन में, क्योंकि आपके पास मेन सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन है जिसमें आपका टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा। सो मेक श्योर आप 20 मिनट्स में ही अपने एप्टीट्यूड क्वेश्चन को खत्म कर दे रहे हो। एंड दैट वॉज माई स्ट्रेटेजी विच आई यूज टू डू इन माई एक्चुअल गेट एग्जामिनेशन। एप्टीट्यूड में आई माई सेल्फ नॉट इन्वेस्टेड दैट मच ऑफ टाइम, बिकॉज एप्टीट्यूड इज समथिंग जितना आप प्रैक्टिस करते हो उतना आपकी ग्रिप ज़्यादा बनती है। तो आई यूज टू इन्वेस्ट मोर ऑन प्रैक्टिसिंग मॉक टेस्ट पेपर या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो दिस वॉज माई गो टू strategy for preparing aptitude questions, which I shared with you. And that was all about this video. And if you liked this video and you found this very helpful, so don't forget to like the video and also share among your friends and community जिनको आपको लगता है कि ये वीडियो से हेल्प हो जाएगी. Also, you would know that I am most active within 3 hours of the video upload, so make sure you utilize this time frame to ask any questions if you have any doubts, any exam preparation tips which you want from me. And I see you soon in the next video and in the comments now. So take care and happy learning.